Bombay is the place where I was born in 1950. So it's my motherland where I am speaking. And my motherland must be expecting a lot from me as far as the excellence of Swami Vivekananda is concerned. Swamiji has spoken very meticulously, impeccably, and I think each and every aspect of the Swamiji's life he has touched through indirectly through Upanishads and various scriptural teachings. स्वामी जी ने जो भी कुछ बोला मैं उसको उसके बहुत नज़दीक नहीं आ पाऊँगा. स्वामी जी is an honored and authoritative person in the mission, Swami Vivekananda mission. I have in my heart Vivekanand because I adore him. मैं उनको अपना रोल मॉडल मानता हूँ, अपने गुरुदेव और स्वामी विवेकानंद को रोल मॉडल मानता हूँ. इसलिए मैं मानता हूँ कि मैंने भी विवेकानंद को उतना ही समझने की कोशिश की है जितना स्वामी जी ने समझने की कोशिश की है. तो हो सकता है कि मैं ह्यूमन एक्सीलेंस की जब बात करूँ तब स्वामी विवेकानंद के वर्ड्स को डायरेक्टली इनडायरेक्टली टच करने की कोशिश करूँगा. एंड दे विल कम इन indirectly in many words. It's okay. I'll request you to just sit erect for a while. सीधे बैठ जाएं, दोनों हाथ गोद में रखें, प्रार्थना करें कि हमारी बुद्धि सन्मार्ग की ओर चले. गायत्री मंत्र सद्बुद्धि के अधिष्ठात्री माँ गायत्री की आराधना का मंत्र है. बाय गायत्री मंत्र भी pray to Ma Gayatri for giving us pure knowledge, pure intelligence. And this pure intelligence makes us a good being, a excellent being, a pure excellent person. आइए गायत्री महामंत्र की प्रार्थना करें. ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्. ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः. अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः. मातृवत् लालयित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोस्तु गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुता चया श्रद्धा प्रज्ञायुता च. Present in today's August audience, Swami Atmapriyanand ji, a Vice Chancellor of the Swami Vivekananda University in Kolkata, the present Swami ji of Ramakrishna Mission in Bombay. Present with us today, the person who is taking the heritage of the Baba Saheb Amte, Dr. Prakash Amte, and his wife Dr. Mandakini Amte, the great server of the society. I have no words to explain their aradhana, their samaj seva. All of us can clap for them. यहाँ उपस्थित सभी देवी स्वरूपा बहनों, देवतुल्य भाइयों, शक्ति स्वरूपा माताओं, बॉम्बे की भगदड़ में, बॉम्बे की भीड़ भाड़ में न जाने कहाँ से कैसे रास्ता बनाते हुए आप सब अपने अपने घरों से आए और इस सभागृह में विद्यमान है. आप सबको मैं नमस्कार करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ. Human excellence is something about which Swami Vivekananda says, adopt an idea, make it your lifestyle. Make it your lifestyle and become like that in life, in every minute, each and every moment of your life. Live that idea. And once that idea becomes your model, role model, then ultimately you will become like that. The one who thinks, he becomes like that. We are what you can just see on the both sides of the screen. I'm just showing few presentations.
We are what we repeatedly do. Excellence, therefore, is not an act but a habit. We are whatever we repeatedly do. Some gentleman has said that whatever you think, you become like that. How come? Whatever you think, you start speaking like that. Whatever you speak, your habits are made like that. Whatever your habits, they make your character. And whatever is your character, character makes you excellent. Character makes you, it makes you a real person. So Aristotle was very intelligent enough to speak on that. Relatively speaking, it is the will to win, जीतने की इच्छा, desire to succeed, सफल होने की मनोकामना, benchmark of performance, सफलता के पूर्वक काम करने की अभिलाषा. ये यदि तीन बातें किसी के जीवन में हैं तो वो सफल व्यक्ति बनेगा. एक्सीलेंस का मतलब होता है गुड, बेटर, बेस्ट, एक्सीलेंट, परफेक्ट. परफेक्शन, पूर्णता. भगवान को पूर्णता से कम कुछ भी पसंद नहीं है. पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते. भगवान चाहता है कि मेरे जैसा बन जाए, हर व्यक्ति मेरे जैसा बन जाए, डिवाइन बीइंग बन जाए. भगवान जो चाहता है यदि वो बनना है तो हमें अपने मन में अंदर से विल टू बिकम लाइक गॉड, डिवाइन बीइंग डेवलप करना पड़ेगा. एक्सीलेंस इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ ऑल द क्वालिटीज ऑफ ए पर्सन विथ अडॉप्शन ऑफ परफेक्शन. जितने भी परफेक्शन की क्वालिटीज़ हैं, पूर्णता की हमारी जो गुण हैं, उनको अपने जीवन में उतारने की आदत. आदत का मतलब होता है रोज आदत. जैसे एक आदत पड़ जाती है ना, झूठ बोलने की, शराब पीने की, बीड़ी सिगरेट पीने की, तंबाकू खाने की. इस तरह से यदि अच्छा काम करने की और अच्छे गुणों को ट्रांसमिट करने की आदत पड़ जाए तो ये आदत धीरे 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 हमको अच्छा बनाती चली जाती है. तो रोज एक गुण को अपने जीवन में डेवलप करें, रोज एक गुण. कल्टिवेटिंग गुड हैबिट्स एंड गुड क्वालिटीज इन योर सोल इज संस्कृति. संस्कृति की परिभाषा, यदि आप कल्चर की परिभाषा मुझसे पूछना चाहें तो मैं कल्चर की परिभाषा कहूँगा, इट इज़ नॉट आर्ट, इट इज़ नॉट डांस, इट इज़ नॉट ए something like what is famous, what Bombay is famous for, the Bollywood. This is not culture. Culture is cultivating good qualities in your soul. Cultivating good qualities in your soul each and every day, each and every moment. हर क्षण यदि हम अच्छे गुणों को बोना चालू कर दें तो हम धीरे धीरे अच्छा आदमी बन जाएंगे. 1% रोज बनने की कोशिश करें तो 100 दिन में 100% बन जाएंगे. चलिए एक दिन में 0.1% बनिए तो 1000 दिन में बन जाएंगे. पर कोशिश तो करिए. वी डोंट ट्राई एंड दिस इज व्हाई द परफेक्शन इज समथिंग विच इज द गॉड हैज एंटिसिपेटेड फ्रॉम अस. स्वामी विवेकानंद सेज ह्यूमन एक्सीलेंस इज एन आउटकम ऑफ हिज बीइंग द प्रिंस ऑफ द गॉड, द ऑलमाइटी. हम ईश्वर के राजकुमार हैं. सबसे बड़ा युवराज, ईश्वर का युवराज अगर कोई है तो मनुष्य है. और मनुष्य को ही सारी चीज़ें दे के भेजा. इंटेलेक्ट इज द गिफ्ट अलॉन्ग विथ सेंटिमेंट्स. किसी पशु के पास, किसी के पास नहीं है, किसी भी एनिमल बीइंग के पास नहीं है. इंटेलेक्ट इज द गिफ्ट अलॉन्ग विथ सेंटिमेंट्स ओनली फाउंड इन ह्यूमन बींग्स. इट इज ओनली फाउंड इन ह्यूमन बींग्स. तो एक मनुष्य के पास जो सबसे बड़ी चीज़ है वो संवेदना मिश्रित प्रज्ञा, ऋतंभरा प्रज्ञा. और इस ऋतंभरा प्रज्ञा को जो जितना ऊंचा उठा लेता है वो उतना ही एक्सीलेंट बनता चला जाता है हर काम में, हर चीज़ में. ये हमारे जीवन में आना चाहिए. What Sri Aurobindo says is excellence is evolution of human intellect to supreme state of consciousness. Supreme state of consciousness, चेतना की परम अवस्था, वहाँ तक पहुँच जाना जहाँ तक पहुँचने के बाद फिर कुछ भी भगवान को कुछ भी कम न पड़े, हमारे लिए कुछ भी कम ना हो. Each person is endowed with divine qualities to ascend up. हर एक के पास divine qualities हैं. हर एक के पास कुछ न कुछ अच्छी दिव्य गुण हैं. Either we ascend up और गॉडली कॉन्शियसनेस डिसेंड्स ऑन अस. या तो हम ऊंचा उठते हैं या ऊपर से चेतना नीचे आती है. भगवान श्री योगीराज श्री अरविंद ने कहा है कि अधिमानस का अवतरण हो रहा है. एंड व्हाट वी सेड, व्हाट माय गुरु सेड वाज दैट ऋतंभरा प्रज्ञा ऊपर उठ रही है. दोनों ऊपर से उतरेंगे तो एक साथ मिलेंगे एक जगह. तो लेट अस असेंड आवरसेल्व्स, असेंड अप फ्रॉम विजडम पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम इंटेलेक्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू is what is necessary today. Excellence का रिजल्ट कहाँ से आता है आखिर? It is high intention, sincere effort, intelligent direction, skillful execution and the vision to see obstacles as opportunities.
You see, obstacles are opportunities to sharpen you, to make you a perfect being. हम लोग क्या करते हैं, अवरोधों को और जो रास्ते में हमारे जो वो आते हैं, मुकाबले आते हैं, उनको हम समझते हैं कि ये हमें नुकसान पहुंचाने के लिए आए हैं. नो, दे शार्पन अस, हमको अच्छा मजबूत बना देते हैं और मजबूत बना करके हमें एक अच्छा बीइंग बना देते हैं. इसलिए कोशिश करना चाहिए कि हमारे जीवन में अवरोध आए. कुंती ने श्री कृष्ण से कहा, कृष्ण तुम आते रहो और हमें दुख देते रहो. अरे ये कैसा वरदान मांग रही है कुंती? बुआ, और लोग तो मुझसे बहुत कुछ मांगते हैं, पर तुम मुझसे मांग रही हो कि मुझे दुख देते रहो, मुझे दुख देते रहो, मुझे कष्ट देते रहो, हम सबको कष्ट देते रहो, हम पांडवों को सबको कष्ट देते रहो. कुंती को कृष्ण जब बोलते हैं तो कुंती कहती है कि हे कृष्ण, जब कष्ट आते हैं तो कष्ट में तुम याद आते हो और तुम हमारे पास आते हो, और जब दुख नहीं होते हैं तो हम सुख में तुमको भूल जाते हैं. हम ऐसा ना हो कि हम तुम्हें भूल जाएं. ये अवरोध हमें, जितने ऑब्स्टिकल्स जीवन में आते हैं, ये हमें मजबूत बनाते हैं. दे मेक अस अप स्ट्रांग. स्वामी विवेकानंद, नरेंद्र नाथ, हु जिसके लिए रामकृष्ण चिल्लाया करते थे, अमर नौरन नौरेन कोथाय, अमर नौरन कोथाय, मेरा नरेंद्र कहाँ है, कब आएगा? पर नरेंद्र तो नौकरी के चक्कर में पड़ा हुआ था, नरेंद्र तो बहुत सारी परेशानियों में पड़ा हुआ था. बट ही केम आउट ऑफ ऑब्स्टिकल्स, ही फेस्ड ऑब्स्टिकल्स. He faced obstacles in front of स्वामी रामकृष्ण परमहंस. और रामकृष्ण परमहंस के महाप्रयाण के बाद एक स्थिति ऐसी आ गई जब मठ में, वारानगर मठ में खाने को कुछ भी नहीं, मोटा चावल खाने को किसी तरह से मिल जाता था. शशि महाराज थे जो कि कहीं से मेहनत करके जुटा के लाते थे, और किसी तरह से मतलब जो शुरू में 1887, 88, 89, 90 तक का जो दिन जिन्होंने देखा है, उसमें स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि दे वर द टफेस्ट डेज वी हैड फेस्ड. बहुत टफ डेज थे, पर हम लोग निकल गए बाहर. हम लोग सन्यासी बन गए, परिवाजक बन गए, और बाहर निकल करके हमने अपने आप को एक्सपोज किया, अपने गुरु को बताया सबको, और गुरु के मैसेंजर बन के गए. गुरु के मैसेंजर बन के जब गए तो 1893 में व्हेन ही वेंट टू अमेरिका, व्हेन ही सेड brothers and sisters of America, and there was a clap all over the whole house, world parliament of religion. And then that started a new chapter. And when he came back, जब वो वापस लौटे, तो वापस लौटने के बाद उनके पास एक गुरु भाई बैठे थे. उन्होंने कहा, नरेंद्र तुमने चमत्कार कर दिया, नरेंद्र तुमने हमारा मिशन इतना बड़ा खड़ा कर दिया, इतना बड़ा बना दिया, तुमने हमें पूरे हिंदुस्तान नहीं, पूरे विश्व में पहुंचा दिया. बोले, खबरदार ऐसा बोला तो ये हम नहीं, ये ठाकुर की वजह से है. ठाकुर नहीं होते तो हम नहीं होते, और हम हैं इसलिए इतना सब कुछ है. मित्रों, जिस बग्गी को जजेस खींच रहे थे, जिस बग्गी को बड़े बड़े सेठ कलकत्ता के खींच रहे थे, उस बग्गी में बैठे रहे नरेंद्र को जरा सा भी अहंकार नहीं. निरअहंकारिता किसी को महान बनाती है. अगर किसी के पास ईगो नहीं है, किसी के पास अहंकार नहीं है, किसी के पास विनम्रता ही विनम्रता है, किसी के पास लड़ने का जज्बा है, लड़ने का साहस है, प्रतिकूलताओं से लड़ने का साहस है, उसके बाद भी, मतलब इतना बड़ा स्वागत होने के बाद भी, 1893 के बाद भी बहुत सारी बदनामियाँ हुई, बहुत सारे लोगों ने उनको बदनाम करने की कोशिश की, बहुत सारी प्रतिकूलताएं आईं. न जाने कहाँ से देवी चेतना, देवी मदद मिलती रही. एंड दिस पर्सन केम आउट ऑफ ऑल ऑड्स. सारी ऑड्स में से निकल के आया. आपको मालूम है अमेरिका की यात्रा इतनी सफल नहीं रही. अमेरिका की यात्रा में कितनी असफलताएं, कितनी बाधाएं, कितनी दिक्कतें आईं, परंतु उन बाधाओं को पार करके जब वो आए तो लौट करके आने के बाद उन्होंने एक मिशन खड़ा कर दिया, जिसका नाम उन्होंने विवेकानंद मिशन नहीं रखा, रामकृष्ण मिशन रखा. अपने गुरु के नाम पर रखा. गुरु के नाम पर जो रामकृष्ण मिशन रखा वही आधार बना. दैट बिकेम द अल्टीमेट बेसिस ऑफ द होल. मैं समझता हूँ कि इंडिया में थोड़ा सा कुछ स्लाइड्स के बाद में एक अगली स्लाइड में आऊँगा जिसमें बताऊँगा उनका एरा जो है, उनका एरा सबसे बड़ा एरा है मित्रों, जिसने कि हमारे गुलाम भारत को एक उम्मीद दी. गुलाम भारत को उम्मीद दी कि हम लड़ सकते हैं अंग्रेज़ों से, हम लड़ सकते हैं दासता से, हम लड़ सकते हैं गुलामी से, और हम लड़ सकते हैं अपने अंदर की जो परतंत्रता है उससे भी लड़ सकते हैं हम. ये स्वामी विवेकानंद का लड़ने का जज्बा. तो विजन टू सी ऑब्स्टिकल एज अपॉर्चुनिटीज. जीनियस इज व्हाट यू हैव. थोड़ा डिफरेंस बता रहा हूँ मैं. जीनियस वो है जो आपके पास है, बुद्धिमत्ता आपके पास है, आपके पास बहुत ज्ञान है, आपके पास बहुत नॉलेज है, आपको सब कुछ याद है,
सारे के सारे उपनिषद, वेद, पुराण, उपनिषद रटे हुए लोग ढेर सारे मैं आपको मिला सकता हूँ, बट एक्सीलेंस इज व्हाट यू डू विथ इट। इस ज्ञान के साथ आप करते क्या हैं, इस ज्ञान से आप दुनिया को लाभ पहुंचाते हैं कि नहीं, दैट इज द एक्सीलेंस। एक्सीलेंटली उसको करना। एक सर्जन है, बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया सर्जरी करता है, पर वो जानता है, उसको बुक्स उसको पढ़ी हुई हैं, बुक्स रटी हुई हैं, बट इफ ही कैन नॉट परफॉर्म द सर्जरी देन ही इज नॉट एक्सीलेंट, ही इज समहाउ ए सर्जन हु नोज द वुड क्राफ्ट। जैसे होता है ना, एक वो कोई सर्जन बैठे हो तो बुरा ना माने, लकड़ी चीरने वाला आदमी चीरता है, ऐसी वो सर्जन भी चीर देता है। नहीं, कलाकारिता के साथ उस बीमार अंग को बाहर निकालना और उसको ठीक कर देना और उसको अपनी जगह पहुंचा देना और उसके बाद उसकी हीलिंग होना, रिकवरी होना, तब तक उसके साथ रहना, ये सर्जन का असली काम है। तो सर्जन का जो काम है वही एक फिजिशियन, एक प्रीस्ट, एक पादरी का, एक प्रीचर का असली काम है। सामने वाले की ह्यूमन बीइंग्स की जो पीड़ित मानवता जो है, इसके अंदर जो दुख है, दर्द है, इसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं। Human excellence, Swamiji emphatically proclaimed that you are not born sinners. What Christians used to say, you are born sinners, and Christ has come to remove your sins. He said, you are not born sinners, but born divine, and awaken this divinity within or out by work or worship or by any means. इस डिविनिटी को, देवत्व को जगाओ, अपने अंदर के देवत्व को जगाओ, पहचानो अपने अंदर के देवत्व को। वी आर अनेबल टू, अनफॉर्चुनेटली वी आर अनेबल टू आइडेंटिफाई इट। हम अपने देवत्व को, अपने अंदर सोए हुए भगवान को, अपने अंदर सोए हुए देवता को नहीं पहचान पाते। हमारे अंदर देवता है, हमारे अंदर शैतान भी है। शैतान उभर के बार बार आ जाता है, पर देवता नहीं आ पाता। इस देवता को जगाना हम लोगों का काम है। मैन इज बॉर्न डिवाइन, मनुष्य जीवन को श्रेष्ठ मानने का आधार उसके अंदर मौजूद अच्छे गुण हैं जो प्रकट होने के लिए अपना रास्ता खोजते रहते हैं। आप देखें, संयम, सेवा, विनम्रता, सहनशीलता, प्रेम, सद्भाव आदि के रूप में प्रकट होकर ये गुण मनुष्य को पशु पिशाच स्तर से ऊपर उठाकर उसे एक अच्छा इंसान बनाते हैं और महानता के रास्ते पर आगे बढ़ाते हैं। हम एक्सीलेंट नहीं बन सकते तो परंतु कम से कम एक ऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग तो बन सकते हैं, एक कंपेशनेट ह्यूमन बीइंग तो बन सकते हैं। हमारे अंदर कुछ न कुछ क्वालिटीज़ ऐसी तो पैदा हो सकती हैं जिससे कि हम कुछ जीवन में ऐसा कर सकें जो अनयूजुअल कहलाया जाए। ये विशेषता आदमी की होनी चाहिए। नेक्स्ट इज मैन इज बॉर्न डिवाइन। इन्हीं गुणों के प्रकाश में मनुष्य की बुद्धि और पुरुषार्थ की क्षमता अपने समय, सुविधा और साधनों का सही इस्तेमाल कर पाती है। ये गुण होते हैं, यही अंदर से निकल के आते हैं जब सद्भावना, सेवा, संवेदना, इन गुणों के प्राकट्य का ही प्रताप होता है कि मनुष्य की शक्ति स्वार्थ, विनाश और गलत कामों से हटकर ईश्वर की वाटिका को सुंदर, सभ्य, सुसंस्कृत बनाने में अपना भाव भरा योगदान देती है। देखिए, हमारा काम एक ही है, भगवान के बनाए हुए बगीचे को सुंदर बनाना और सुंदर बनाना। आप ये मत समझिएगा कि मैं अपना काम कह रहा हूँ, या आप सबका काम है। भगवान के बनाए हुए इस बगीचे को और सुंदर बनाने के लिए जितना प्रयास किया जाए उतना कम है। सबका प्रयास ये होना चाहिए। इसी का नाम है आराधना, इसी का नाम है ईश्वर सेवा, इसी का नाम है जीव सेवा, नारायण सेवा, ईश्वर सेवा। ये इसको कितना सुंदर बना सकते हैं। बिगाड़ो मत, कोई फूल तोड़ो मत, सांप्रदायिकता के माध्यम से इसको परेशान मत करो, इस बगीचे को। और न जाने कितने प्रकार के हमारे यहाँ भी जीव भेद और न जाने कितने प्रकार के लिंग भेद और ऊंच नीच का भेद और लड़का लड़की का भेद, न जाने कितने प्रकार की हमारी बुराइयां हमारे देश में आ गई। इन सब से ऊंचा उठकर 21वीं सदी 21st सेंचुरी में हम जी रहे हैं और अभी भी वो बुराइयां भी हमारे बीच में हैं जो स्वामी विवेकानंद के समय में थी। छुआछूत, ऊंच नीच, जाति प्रथा अभी भी हमारे बीच में है। क्या हम इनसे लड़ नहीं सकते? क्या हम इनसे जूझ नहीं सकते? हमको बहुत कुछ काम करना बाकी है मित्रों, एक्सीलेंस लाने के लिए इस कंट्री को। ह्यूमन एक्सीलेंस, मैन इज बॉर्न डिवाइन। स्वामी विवेकानंद वर्ड्स आर वेरी पोटेंशियली full of power. All power is within you. You can do anything and everything. हिम्मत देने वाला अगर कोई आदमी था तो विवेकानंद। उसने कहा, तुम्हारे अंदर सारी ताकत भरी पड़ी है, तुम सब कुछ कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। बिलीव इन दैट। यू सी, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज बिलीफ। विश्वास में बड़ी शक्ति है। श्रद्धा विश्वास रूपिणो भवानी शंकरो वंदे, श्रद्धा विश्वास रूपिणो। मैं भवानी और शंकर को प्रणाम करता हूँ श्रद्धा और विश्वास के रूप में। डो नॉट बिलीव दैट यू आर वीक, डो नॉट बिलीव दैट यू आर हाफ क्रेजी ल्यूनेटिक्स एज मोस्ट ऑफ अस डू नाउअडेज। स्टैंड अप एंड एक्सप्रेस द डिविनिटी विद इन यू, स्वामी विवेकानंद सेड। ये अगर हम लोग सब मिलकर के अपनी अपनी डिविनिटी को जगाने लगेंगे आज के बाद,
थोड़ा थोड़ा देवत्व अपने अंदर का जागरण करेंगे और ये समझेंगे कि हमारी भी ड्यूटी कुछ समाज के लिए है, हमारे अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने आसपास के राष्ट्र के लिए है, सबके लिए है, तो वास्तव में हम लोग ज़्यादा बेटर कर सकते हैं. वी कैन डू a lot better. Gradually combine together, all of us here. How many people are seated? I don't know the figure, but whatever is the number of the people seated here, हम लोग सब मिलकर के इस देश को बहुत सुंदर बना सकते हैं. इस राष्ट्र को सारे विश्व का जगत गुरु बना सकते हैं. सारे विश्व का जगत गुरु बनने की पात्रता अगर किसी देश में है, जिसके पास संस्कृति है, वो केवल भारतवर्ष है. बाकी सबके पास सभ्यता है, हमारे पास संस्कृति है. हो सकता है हम असभ्य हों, हम गंदे हों, हम कचरा बाहर फेंक देते हो, सब कुछ कर देते हो, पर कम से कम हम अंदर से तो अच्छे हैं, दिलदार हैं, हम दूसरों के लिए कुछ करने की उम्मीद रखते हैं. ये हमारे अंदर की क्वालिटी जो है भारतीयों की, ये हमको महान बनाती है. ह्यूमन एक्सीलेंस अकॉर्डिंग टू उपनिषद्स, एनीथिंग डन विथ विद्या. स्वामी जी हैज टोल्ड अ लॉट अबाउट उपनिषद. आई एम जस्ट टचिंग इट. श्रद्धा कैन अलोन बिकम सुप्रीमली एफिशिएंट. टू बी एफिशिएंट यू नीड टू इक्विप योरसेल्फ विद नॉलेज और नो हाउ फर्स्ट. एफिशिएंट होने के लिए, एफिशिएंसी क्षमता को अर्जित करने के लिए आपको अपने अंदर ज्ञान को अर्जित करना पड़ेगा. और नहीं ज्ञानेन सदृश पवित्रम हि विद्यते. ज्ञान से ज़्यादा पवित्र इस धरती पे कुछ भी नहीं है. वंस यू इक्विप योरसेल्फ विद द नॉलेज, एफिशिएंसी कैन ओनली कम इफ यू हैव ए स्ट्रॉन्ग फेथ इन योरसेल्फ. द होल थिंग इज पर्सनल कन्विक्शन. अपने अंदर गहरा विश्वास अपने प्रति. उन्होंने एक सबसे बड़ी परिभाषा दी जिसने मेरा जीवन बदल दिया. आत्मविश्वास ही ईश्वर विश्वास है. सेल्फ कॉन्फिडेंस इज कॉन्फिडेंस इन गॉड. बस. Whether you go to the statue, whether you go to the idol, whether you go to the church, whether you go to the mosque, I don't believe it or no, I don't believe it. मैं नहीं मानता आप जाते हैं कि नहीं जाते कोई बात नहीं, पर आपको अपने ऊपर विश्वास है कि नहीं. जिसको अपने ऊपर विश्वास नहीं है उसको ईश्वर विश्वास नहीं है, वो भगवान पे विश्वास नहीं कर सकता, क्योंकि भगवान यहीं बैठा है. ममे वांशो जीव लोके जीव भूत सनातन. मेरा ही एक अंश जीव लोक में, जीव भू इसके अंदर यहाँ सनातन आत्मा के रूप में यहाँ बैठा हुआ है. मित्रों, बहुत सारे लोग मुझे मिलते हैं निराश. अभी स्वामी जी ने दिया की बात की. दिया युवाओं के माध्यम से आएगा. नचिकेता को युवा मॉडल कहा, दिया का मॉडल कहा, रोल मॉडल कहा नचिकेता को. मित्रों, आज मुझे यंग लोग मिलते हैं 20 साल के, 22 साल के, 23-24 साल के, और ऐसा लगता है कि वो बहुत डिप्रेस्ड हैं और बहुत ज़्यादा अब कुछ नहीं होने वाला आज दुनिया में, सारा बेकार है, सब फालतू की चीज़ें हैं. क्यों बूढ़े हो गए क्या तुम? 70 साल के हो गए, 80 साल के हो गए. 20 साल की उम्र में 80 साल की उम्र की बात करना और ये कहना कुछ नहीं होने वाला, क्या बात है? आखिर ये जो यंग है, युवा है, अगर 70 साल की उम्र में ये है कि मैं बचे हुए 20 साल भी मैं संसार की सेवा करूंगा, खूब शक्ति की उससे सेवा करूंगा, मैं उसको युवा कहूँगा. मैं कहूँगा ये युवा सन्यासी. स्वामी जी हमारे युवा सन्यासी हैं. पर हम लोग अपने आप को नेगेटिविटी से भरकर अपने आप को पूरी तरह से उदास बना लेते हैं, और उदासी और नेगेटिविटी ये हमारे जीवन का सबसे बड़ा कर्ज है. इससे निकल के बाहर आना एक्सेलेंस को उभारने की प्रक्रिया है. विद्या, श्रद्धा, विश्वास. विद्या, नॉलेज, श्रद्धा एंड विश्वास. इन तीन चीज़ों को, when all these three powers are combined, you get a superlative degree of efficiency, which स्वामी जी termed as human excellence. ह्यूमन एक्सेलेंस के उन्होंने 3 पार्ट बताए. विद्या, सा विद्या या विमुक्तये. विद्या वो जो शिक्षा नहीं, विद्या वो जो मुक्ति की ओर ले जाए. विद्या वो जो आपको अमृतत्व की प्राप्ति कराए. सा विद्या या विमुक्तये विद्या अमृत अश्नुते. और श्रद्धा, श्रद्धया सत्य माप्यते. विश्वास, प्रगाढ़ विश्वास, इतना विश्वास कि विश्वास आपको कहीं अधूरा न रखने दे. अकॉर्डिंग टू स्वामी जी, बिल्डिंग अप योर कैरेक्टर इज एन एसेंशियल एलिमेंट टू ह्यूमन एक्सीलेंस. ह्यूमन एक्सीलेंस अचीव करना है तो सबसे पहला ध्यान आदमी के चरित्र के निर्माण पर देना पड़ेगा. हमें पूरे भारत के, पूरे देश के चरित्र के ऊपर बहुत गहराई से ध्यान देना पड़ेगा कि हमारा युवा चरित्रवान बन रहा है कि नहीं. अगर चरित्र नहीं बन रहा, चरित्र के ऊपर भगवान रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद दोनों ने बहुत ज़्यादा जोर दिया. मेरे गुरुदेव ने भी बहुत ज़्यादा जोर दिया. एंड आवर एक्टिविटीज़ आर सेंटर्ड ऑन ऑल दिस. एवरी इंडिविजुअल इज यूनिक एंड द कैरेक्टर इज हिज आइडेंटिटी. हमारे हर यूनिक इंडिविजुअल के अंदर एक आइडेंटिटी है. उस जैसे कहते हैं ना, आईडी कार्ड है. मेरे पास एक आईडी कार्ड है, आपके पास भी एक आईडी कार्ड है. सोल के ऊपर लिखा हुआ है, वो दिख नहीं रहा, पर भगवान को मालूम है कि क्या है. अंदर से क्या हो, ये अगर आपको पता चल जाए तो आनंद आ जाए. बस अपनी आईडी खुद देखने की कोशिश करें. आइडियल ब्लेंडिंग ऑफ शिक्षा एंड विद्या. शिक्षा इज एजुकेशन, शिक्षा इज सभ्यता, शिक्षा इज विज्ञान, शिक्षा इज समथिंग विच गिव्स यू इंफॉर्मेशन ऑफ नॉलेज एंड बम्बार्डमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन. विद्या इज समथिंग विच गिव्स यू, विच टेक्स यू अवे फ्रॉम इग्नोरेंस.
विद्या इज कल्चर, विद्या इज स्पिरिचुअलिटी। मतलब मैं आप दोनों की परिभाषा बताता चला जा रहा हूँ। शिक्षा और विद्या की प्रॉपर ब्लेंडिंग होना चाहिए। अविद्या और विद्या दोनों के बारे में ईशावास्योपनिषद में बड़ा अच्छा श्लोक आता है और ये बताता है कि अविद्या और विद्या दोनों को मिलना चाहिए। अविद्या के बिना विद्या किसी काम की है? एटॉमिक साइंस, न्यूक्लियर साइंस का हमारे पास इतना बड़ा प्लांट है BIRC, और उसकी जानकारी नहीं है हमको, और हम अपने विज्ञान के बारे में जानकारी नहीं हासिल करेंगे तो फिर आगे कैसे बढ़ेंगे? तो विज्ञान को भी पढ़ो, पर ज्ञान को अर्जित करो। और ज्ञान किस चीज़ का? आत्म तत्व का। उस नॉलेज ऑफ द सेल्फ, नॉलेज ऑफ द सोल, टू इन्फ्यूज सेल्फ बिलीफ that enables one to overcome any difficulty or obstacle that comes in one's way to achieve his or her objective। अगर ऑब्जेक्टिव जो उद्देश्य हमको प्राप्त करना है, उसको प्राप्त करने के लिए हमको उस रास्ते से चलना पड़ेगा। ओनली दोज पीपल विद a high degree of character excellence can nourish this world। ज़्यादा से ज़्यादा चरित्रवान व्यक्ति हम पैदा करेंगे तो हम इस विश्व को, पूरे विश्व को संभाल सकते हैं। Hence the character building is an essential element for human excellence। अब मैं थोड़ा सा आपको I want to show you a tree। This tree has got roots, this tree has got a stem, this tree has got branches। These roots are the spiritual faith, mind is the trunk and body is the branches। What happens? The roots are diseased। If the roots are diseased, the stem will also be diseased। आस्थाएं गड़बड़ाएंगी तो मन भी गड़बड़ाएगा, मन गड़बड़ाएगा तो हमारा शरीर भी गड़बड़ाएगा। Today many of the people are telling about the psychosomatic disorders, but do they know that psychosomatic disorders, where do they originate? Where does the stress originate? It starts from our spiritual faith। If our faith is disturbed, then everything is disturbed। So we should try to keep that in proper control। Spiritual faith को strong बनाना चाहिए। Swamiji's vision for humanity, to Swamiji human excellence means ultimate being, bring East and West together, best of East and best of West, bring them together। Spiritual knowledge combined with organizational capabilities, integration of spirituality with science, this is Swamiji's vision। Inner peace with outer action, spiritual attainment with material advancement। ऐसा नहीं कि बाहर की प्रगति ना हो, material advancement ना हो, सब कुछ हो, पर इन सब के साथ inner growth के साथ, inner growth and outer achievement, outer achievement। If these two things, best of East and best of East, are combined, everything is combined, then the excellence all over the globe will be seen। When India is stepping towards global leadership, I'm just showing you few slides very fast। आप देखेंगे ग्लोबल लीडरशिप की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं आगे, बट अनफॉर्चुनेटली करेंट सिनेरियो इज द वैल्यू सिस्टम डेड। वैल्यू सिस्टम क्या मर गया है, समाप्त हो गया है? मैं जस्ट बता रहा हूँ आपको। कैन वी रिवाइव द ह्यूमन एक्सेलेंस मॉडल ऑफ स्वामीजीज विजन? कैन वी रिवाइव द ऋषि ट्रेडिशन? ऋषि ट्रेडिशन जो ऋषि संस्कृति हमारी थी, उसको हम रिवाइव कर सकते हैं। कैन वी प्रोवाइड ए न्यू मॉडल ऑफ ह्यूमन एक्सेलेंस इन करेंट सिनेरियो? आज के भौतिकवादी परिदृश्य में क्या हम एक नया मॉडल दे सकते हैं जिसमें कि आदमी एक्सेलेंट बन सके? 3 M's that changed our lives in last decade, all of you know it। First M बोलिए, मोबाइल। Second M बोलिए, मनी। एंड थर्ड M बोलिए, मॉल्स, सॉरी मॉल्स, मल्टीप्लेक्स। क्या बात है, चलो चलते हैं मॉल्स, चलते हैं। कुछ नहीं खरीदेंगे, कोई बात नहीं, एयर कंडीशन हवा में घूम लेंगे और थोड़ा सा सपने संजो लेंगे। ये जो चीज़, इन 3 चीज़ों ने हमारी ज़िंदगी को बदल दिया है, पूरी तरह से बदल दिया है। और आज का हमारा जो मॉडर्न युवा है या मॉडर्न मिडिल एज का जो आदमी है, उसकी जीवन पद्धति गड़बड़ा गई है। सो स्मोकिंग, अल्कोहल एंड ड्रग्स, सैड, these are the things which are the curses today, which is the biggest problem। 1 in every 5 smokes 13 to 15 cigarettes a day। 1 in every 5। This is the data of the गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, हेल्थ मिनिस्ट्री। 1 in 5 ये जो स्मोकिंग चालू हो जाती है, ये अल्टीमेटली डैमेजेस द होल बॉडी एंड अल्टीमेटली किल्स। स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, ओवर ईटिंग, अंडर ईटिंग, जूमिंग आउट फॉर आवर्स इन फ्रंट ऑफ टीवी, विदड्रॉइंग फ्रॉम फ्रेंड्स, यूजिंग पिल्स, स्लीपिंग टू मच, प्रोक्रेस्टिनेशन, काम को आगे छोड़ देना, आगे बढ़ा देना, filling up every minute of the day to avoid facing problem, taking out your stress on others, lashing out, angry outbursts, physical violence, all these things are happening today because of this stress। Heart disease is on rise among Indian youth, India Times says। वास्तव में मेरे पास 27-28 साल की उम्र के, 30 साल की उम्र के हार्ट अटैक के पेशेंट्स आते हैं, बच्चे आते हैं, युवा। क्यों? दे आर अनेबल टू कोप विद द स्ट्रेसेस। जो तनाव आ रहा है,
जो मॉडर्निटी का तनाव आ रहा है वो उसके साथ कोप नहीं कर पाते. ऑल दिस पॉइंट्स टू ए सीवियरली स्ट्रेस यूथ विथ नो हेल्दी एस्केप एक्टिविटीज़. हेल्दी एस्केप एक्टिविटीज़ हम नहीं अपने लिए इकट्ठे कर पाए. समाज सेवा, समाज के लिए कुछ करना, कर दिखाना, स्वाध्याय, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, ये एस्केप एक्टिविटीज़ होनी चाहिए थी जिसमें हम जा सकते थे. लीडिंग टू लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर्स, स्ट्रेस, एंग्जाइटी एंड डिप्रेशन. अल्टीमेटली जो आज जो आ रही हैं बहुत सारी चेंजेस आ रहे हैं लाइफ स्टाइल में, वो बहुत सारे हमें वेस्ट की ओर ले जा रहे हैं, जबकि हमें वेस्ट हमारा ईस्ट की ओर देख रहा है और ईस्ट हमारा वेस्ट की ओर देख रहा है और वेस्ट की नकल करने की कोशिश कर रहा है. हम एक्सीलेंस कैसे लाएंगे जब तक हम बर्जर संस्कृति और जाज संस्कृति, पॉप संस्कृति से अलग नहीं हटेंगे तब तक. मेनी टाइम्स वी आस्क कि ये जो ब्लड प्रेशर हुआ और तकलीफ हुई मेरे को ही क्यों हुई, वाई मी, वाई नॉट हिम, उसको क्यों नहीं हुआ, दूसरे को क्यों नहीं हुआ. इनइफेक्टिव पीपल, दीज आर इनइफेक्टिव पीपल. ह्यूमन डेवलपमेंट, देयर आर 5 एराज ऑफ द ह्यूमन डेवलपमेंट. मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि हम पूरी भारतीय संस्कृति के इतिहास को हम डिवाइड करें. फर्स्ट एरा इज वैदिक एरा. वेदास वेर रिटन इन दिस पर्टिकुलर एरा एंड द वेदास, विद मीन्स विद से वेद बना है, ज्ञान से पूरा ओरिजिन हुआ है. और वेद अखिलस्य धर्म मूलम, सारे विश्व भर के धर्म का मूल अगर कोई है तो वेद है. तो वेदों ने इसको हमको दिया, सामवेद, अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद, इन सब वेदों ने हमें दिया सारा ज्ञान. और इस ज्ञान की एरा में हमारे को अपौरुषेय वाणी मिली, भगवान की तरफ से जो वाणी मिली उससे हम आगे बढ़े. सेकंड एरा इज उपनिषदिक एरा. वेदों के बाद उपनिषद का समय आया, 108 उपनिषद लिखे गए, 108 और लिखे गए, और उसके बाद और भी छोटे छोटे से उपनिषद लिखे गए. इन उपनिषदों ने हमें ज्ञान दिया. उपनिषद यानी पास बैठकर लिया गया ज्ञान. जैसे आप मेरे पास बैठे हैं और मुझसे बात कर रहे हैं, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तो ये ज्ञान, दिस नॉलेज विच यू अटेन आर ऑब्टेनिंग फ्रॉम मी इज उपनिषद. 5 एराज ऑफ डेवलपमेंट में थर्ड एरा है महाभारत एंड गीता. महाभारत एंड गीता, दिस थर्ड एरा इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज this book was brought by this era, third era, and Gita is the essence of all religion. सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदन. सारे उपनिषद अगर गाय हैं तो उनको दूध दूहने वाला जो है वो कौन है, गोपाल नंदन. वो भगवान कृष्ण जो है अर्जुन को बछड़े की तरह से दूध पिलाते हैं. इस तरह से ये उपनिषदों का अमृत है गीता. गीता को अगर आपने समझ लिया, गीता के जीवन को जीवन में उतार लिया, तो बहुत कुछ आपके जीवन में आ सकता है. एरा ऑफ बुद्ध एंड महावीर. द फोर्थ एरा इज बुद्ध एंड महावीर. करुणा, अहिंसा, वट एवर दे गिव, द सम्यक जीवन पद्धति, वेल टू डू, प्रॉपर जीवन पद्धति. द फिफ्थ एरा इज एरा ऑफ लास्ट एंड 10th centuries. आदि शंकराचार्य, then the Gyaneshwar, then Kabir, then Samarth Guru Ramdas, Ramakrishna Paramahansa, my Gurudev, Pandit Sri Ram Sharma Acharya, Swami Vivekananda. They propagated divine qualities, imparted human values, so that people could become excellent in all aspects of life. ये एक्सीलेंस को अचीव करने के लिए इन्होंने जीवन जिया. और हमारे अपने जीवन को जी करके छोटी सी उम्र में, 23 साल की उम्र में, संत ज्ञानेश्वर, संत शंकराचार्य 33 साल की उम्र, 39 years, और स्वामी विवेकानंद इतनी कम उम्र में जीवन जी करके सब कुछ जी करके चले गए. दे लिव्ड दैट लाइफ विद एक्सीलेंस. स्पिरिचुअल इवोल्यूशन विद एडवेंट ऑफ साइंस इन लास्ट 1200 years. आप देखें 18th century में केमिस्ट्री का आविष्कार हुआ. केमिस्ट्री ब्रॉट अस लॉट ऑफ न्यू इन्वेंशंस. 19th century में फिजिक्स का आविष्कार हुआ, लोकोमोटर ड्राइव्स आई, और ग्रेजुअली वी स्टार्टेड वर्किंग टूवर्ड्स द particle physics and all those things. 20th century was the one in which the Einstein was born, and ultimately the nuclear holocaust was forecasted, and ultimately it happened. And lastly, the 21st century. This is the century of human excellence. ये जो है ये भाव संवेदनाओं की गंगोत्री है, भाव संवेदनाओं की सदी है. Culture of rishis and scientists, they lived qualities in their own life. स्वयं आचरण शिक्षित पृथ्व्याम सर्वमानव. अपने आचरण से जो शिक्षा दे पृथ्वी में समस्त मानवों को, ऐसा भारतवर्ष हमारा है. गौरवशाली इतिहास, सनातन संस्कृति, उत्कृष्ट आदर्श जीवन, पारिवारिक परंपरा, संयुक्त कुटुंब परंपरा, जीवन मूल्यों को जीने की परंपरा. What we can learn from glorious past. I'm sorry I didn't get various photographs from rishis and gurukuls.
So I just shown you Badrinath, Rishis, Lal Killa and Taj Mahal. Lal Killa and Taj Mahal are not Gaurashali Itihas of ours, but still they symbolize one thing. Human excellence, how excellence can be imparted to youngster of today? कैसे दे सकते हैं आज के यंगस्टर को, आज के यंग दिया को, आज के यंग युवा को कैसे दे सकते हैं? मेरे गुरुदेव ने लिखा है अखंड ज्योति में, मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता आप है। इस विश्वास के आधार पर हमारी मान्यता है कि हम उत्कृष्ट बनेंगे इफ़ वी ट्राई टू बिकम एक्सेलेंट, एंड दूसरों को श्रेष्ठ बनाएंगे, वी विल ट्राई टू मेक अदर्स बेटर, देन युग अवश्य बदलेगा, जमाना जरूर बदलेगा, हमारा युग निर्माण सत्संकल्प अवश्य पूर्ण होगा। ही रोट एन 18 पॉइंट, एक पूरा उन्होंने एक गीता लिखी, उस गीता के 18 अध्याय थे, उस गीता युग निर्माण सत्संकल्प हम उसको कहते हैं, आवर मैनिफेस्टो, हमारा मैनिफेस्टो संविधान है हमारा। पुरुषार्थ एक नियम है और भाग्य उसका अपवाद। हम क्या करते हैं, भाग्य को गाली देते रहते हैं। पुरुषार्थ एक नियम है, अपवादों का अस्तित्व तो मानना पड़ता है, पर उसके आधार पर कोई नीति नहीं बनाई जा सकती। अध्यात्म जिसे हमें प्रबल पुरुषार्थ की प्रेरणा देने का माध्यम बनना था, न जाने क्यों भाग्यवाद का पक्षधर बन गया। आज हर आदमी ये कहता है कि ये अंगूठी, ये मेरे नग, ये मेरे ये सब चीज़, और मेरी किस्मत ही ख़राब है, मैं क्या करूं, बस मेरी किस्मत ही ख़राब है। किस्मत ख़राब नहीं है, किस्मत ख़राब नहीं है, आपकी दिमाग की ये जो है ना, क्या बोलते हैं, ग्रह खराब है, मेरे ग्रह खराब है। ग्रह नहीं, ग्रह की अकल खराब है, ग्रह की यहाँ की अकल खराब है, इसको ठीक कर लो। किसी ग्रह नक्षत्र ने ठेका नहीं ले रखा कि इस आदमी को जाके धोखा, इस आदमी को परेशान करना है, इसके ग्रह इसको गड़बड़ाना है। किसी के पास इतना टाइम नहीं है, ग्रह नक्षत्रों को तो अपना काम करना है, सूर्य के चक्कर लगाना है, उनको सब इतना काम करना है। वाई शुड वी बॉदर अननेसेसरली? डू पुरुषार्थ, मेहनत करो, पुरुषार्थ करो, इसी से एक्सीलेंस आएगी। भाग्यवाद और परिस्थिति को दोष मत दीजिए। अध्यात्म साधनाओं का मूल उद्देश्य है आदतों, विचारधाराओं, मान्यताओं, गतिविधियों को ठीक करना, जिसके द्वारा हम श्रेष्ठताओं को पा सकते हैं। संसार को हम जितना अच्छा बनाना देखना चाहते हैं, हम इसकी अपेक्षा कहीं ऊंचा बनने का आदर्श उपस्थित करना पड़ेगा। हम जितना अच्छा बनाना चाहते हैं, उससे ऊंचा देखने का आदर्श बनाना पड़ेगा। उत्कृष्टता ही श्रेष्ठता उत्पन्न करती है। आदर्श सदा कुछ ऊंचा उठा रहता है, एवं उसकी प्रतिकृति कुछ नीचे रह जाती है। प्रतिभा परिष्कार के 4 सूत्र में समझाना चाहता हूँ, जो मेरे गुरुदेव ने मुझे बताए हैं और मुझे समझाए, मुझे बहुत अच्छी तरह समझ में आए हैं। डेवलपमेंट ऑफ कैपेसिटी, बिल्ड अप योर कैपेसिटी। आपके अंदर अनंत संभावनाएं हैं, आप अपनी कैपेसिटी को बढ़ाइए। बिल्ड अप योर कैपेसिटी, जो भी कुछ है उस पात्रता को बढ़ाइए। सेकंड है व्यवस्था बुद्धि का विकास, मैनेजरल डेवलपमेंट। मैनेजर वो नहीं होता जो केवल अपने ऑफिस का मैनेजमेंट करता है, अपना मैनेजमेंट, अपने समाज का मैनेजमेंट, परिवार का मैनेजमेंट, मैनेजरल कैपेबिलिटी। थर्ड इज रिफाइनमेंट ऑफ पर्सनैलिटी, अपने व्यक्तित्व को परिष्कृत करिए। और व्यक्तित्व का परिष्कार मेकअप रूम में नहीं होता, जाके कि अपने को ठीक कर लें, ठीक से वो कर लें। व्यक्तित्व का परिष्कार गुणों को जीवन में डालने से होता है। और अग्रगमन यानी लीडरशिप स्किल, लीडरशिप। Take the leadership in your hand and take this leading Bharat to the 21st century's India, to the greater India. लीडरशिप अपने हाथ में लीजिए। पूरा विश्व हमारी इंतजार कर रहा है, पूरा विश्व हमारी प्रतीक्षा कर रहा है। विद्या अर्थात दृष्टिकोण का परिष्कार, चिंतन और भावनाओं में उत्कृष्टता, इसके बिना मनुष्य के अंतराल में छिपी रहस्यमयता, दिव्यता का विकास नहीं हो सकता, डिविनिटी का। इसलिए मैं थोड़ा सा डिटेल में बता रहा हूँ। मानवता और महानता की आंतरिक शिष्टता का विकास जिस क्रम से होता है, उसी क्रम से आकांक्षाएं, विचारणाएं, गतिविधियां उच्च स्तरीय बनती चली जाती हैं। कैन द वैल्यू सिस्टम बी रिवाइव्ड इन मॉडर्न वर्ल्ड फॉर अचीविंग ह्यूमन एक्सेलेंस? क्या हम ह्यूमन सिस्टम, वैल्यू सिस्टम को रिवाइव कर सकते हैं? वर्तमान शिक्षा प्रणाली में बदलाव की आवश्यकता है। वी नीड टू चेंज ड्रेस्टिकली द एजुकेशन सिस्टम। और विद्या का स्वरूप है ज्ञान, अनुभव और अभ्यास, नॉलेज, एक्सपीरियंस एंड प्रैक्टिस। ये हमको रेगुलर अपने जीवन में अचीव करना पड़ेगा। प्राचीन काल में गुरुकुलों में आचार्य, अभी स्वामी जी ने जैसा कहा, आचार्य अपने जीवन, ज्ञान और अनुभव से इस आवश्यकता को पूरा करते थे। हमें भी ऐसे व्यक्ति पैदा करना पड़ेंगे। आप अपने जीवन से टीच करिए, स्वयं आचरण शिक्षित। आज उस गुरुकुल प्रणाली के पुनर्जागरण की महती आवश्यकता है। इसी को ध्यान में रखते हुए हरिद्वार में हमने देव संस्कृति विश्वविद्यालय चालू किया है। स्वामी जी का विश्वविद्यालय स्वामी विवेकानंद विश्वविद्यालय है, हमारा देव संस्कृति विश्वविद्यालय है। मैं समझता हूँ कि इस तरह के रोल मॉडल विश्वविद्यालय आने वाले 12 वर्ष में, 1990 के बाद एक 24 साल का अवधि बीती, 2014 आ गया, 2014 से लेकर 2026 तक 12 साल में बहुत तेज़ी से ऐसे रोल मॉडल खड़े होंगे, ऐसे शिक्षा एजुकेशन के रोल मॉडल। और साधना शताब्दी जो हम मनाने जा रहे हैं, साधना शताब्दी वर्ष 2026 में, उसके पहले हमारे पास प्रेजेंट होंगे। प्रतिभाशाली लोक सेवी का निर्माण,
ऋषि प्रणीत जीवन दर्शन, ज्ञान पर युगानुकूल शोध और इस विश्वविद्यालय के मूलभूत लक्ष्यों में से है। आई एम जस्ट शोइंग यू द ग्लिम्स ऑफ द यूनिवर्सिटी। दिस इज माई यूनिवर्सिटी ऑन हरिद्वार नीति पास हाईवे, हरिद्वार बद्रीनाथ हाईवे, हरिद्वार देहरादून हाईवे. It is 200 kilometers from National Capital Delhi. You can see the photograph of the university. And the tools of excellence are उपासना, अपने रोल मॉडल की उपासना. विवेकानंद को रोल मॉडल मानते हो तो उसी की उपासना करो. तुम तो शाहरुख खान की उपासना करते हो और तुम तो न जाने किस किस की उपासना करते हो. उपासना का मतलब होता है पास बैठकर उसके जैसा बन जाना. अरे जिसकी मूवी देखोगे उसके पास बैठकर उसके जैसे ही बनोगे. और कैसे बनोगे? उसके जैसी हरकतें करोगे, उसके जैसी बोली बोलोगे. हम करेंगे, हम वरेगा, हम ऐसा करेंगे, तो ऐसी बोली बोलने लगेंगे. तो उपासना का मतलब होता है अपने आप को वैसा ही बना लेना जैसा सामने वाला है. पास बैठकर वैसा ही बन जाना. आग के पास बैठने से आदमी गर्म हो जाता है, बर्फ के पास बैठने से आदमी ठंडा हो जाता है. तो भगवान के पास बैठकर भगवान जैसा थोड़ा सा क्यों नहीं बनता? वो एक पुजारी था जिसने रामकृष्ण परमहंस के रूप में जन्म लिया और भगवान के पास बैठा और भगवान के पास बैठकर भगवान जैसा बन गया. वो गुरु नानक साहब थे जिन्होंने कि गुरुद्वारा गुरु ग्रंथ साहब को जन्म दिया. उनके पूरे उनकी दश गुरु परंपरा ने, क्योंकि उन्होंने जीवन को जिया वैसा जीवन जी करके दिखाया उन्होंने. ऐसा हमको उपासना करनी पड़ेगी. साधना का मतलब होता है संयम. 4 प्रकार के संयम: समय संयम, अर्थ संयम, इंद्रिय संयम और सबसे बड़ा चीज़ है विचार संयम. हमारे थॉट्स का मैनेजमेंट प्रिंसिपल, अपने आप को सेल्फ मैनेज करने की तकनीक सीखें. तीसरा है स्वाध्याय, सेल्फ स्टडी. अपने आप को पढ़ने की कोशिश करिए. रोज अच्छी किताबें पढ़िए. स्वामी विवेकानंद की वाणी को अगर आप रोज पढ़ेंगे, परम पूज्य गुरुदेव के विचारों को 3000 से ज़्यादा किताबें इन्होंने लिखी हैं वो पढ़ेंगे, आप देखेंगे आपके जीवन में बदलाव आता चला जाएगा. अच्छे विचार जीवन को बदल देते हैं, पूरी तरह से चेंज कर देते हैं. सेवा के जितने प्रकल्प हैं उन प्रकल्पों से हमको बहुत कुछ करने की अपेक्षा है. मैंने उसी चीज़ को एक्सप्लेन किया जो अभी बोला है. What we can learn from Swami Vivekananda in his life, what we can learn from experiments of Pandit Shri Ram Sharma Acharya, this is what we have to think today. आज हम सोचें कि इन दोनों ने जो जीवन जिया उसको हम कैसे जीवन में जी सकते हैं. My Gurudev has written a book, Vasiyatu Virasat, My Life, Its Legacy and Message. Can you read this book and can you adopt a few virtues of this book? Our endeavor for human excellence. मैं थोड़े से 3-4 स्लाइड्स में दिखाना चाहूँगा. संस्कार, शिक्षा, विद्या हम लोग देते हैं, बच्चों को संस्कार देते हैं. संस्कार, शिक्षा, विद्या का एक छोटा सा स्वरूप. समाज सेवा के विभिन्न प्रकल्प, वृक्ष गंगा अभियान, नदी के किनारों को हरी चुनर पहनाना. आप लोगों के बीच में एक बच्चा बैठा है, मनोज तिवारी. उसने करीब 150 पहाड़ियों को हरा भरा बनाया है. 150 पहाड़ियों को वृक्षों से लाद दिया. और असंभव लगता था, बिल्कुल इम्पॉसिबल लगता था, पर मध्य प्रदेश और राजस्थान में उसने ये काम करके दिखाया है. और न जाने कितने पेड़ लगाए. हमने करीब इस साल हमने 6 मिलियन मतलब 60 लाख ट्रीज हमने 2012-2013 में लगाए. 40 लाख और लगाना है हमको. 1 करोड़ वृक्ष से धरती को आच्छादित करने. क्यों? हमको पर्यावरण बदलना है, हमको क्लाइमेट बदलनी है, हमको चेंज करना है. तो ये कौन करेगा? युवा करेगा. युवा को सेवा के प्रकल्पों में जुड़ना पड़ेगा. पॉलीथीन से सफाई, तीर्थों की सफाई, और स्टूडेंट्स को कंस्ट्रक्टिव प्रोजेक्ट्स में जोड़ना. बाल संस्कारशाला, बच्चों के संस्कार समय समय पर अच्छे मिलते चले जाएं, इसके लिए हमको प्रयास करना पड़ेगा. मास मोबिलाइजिंग मूवमेंट एंड स्पेशली टेकिंग नारी विथ अस, स्पेशली टेकिंग वुमेन पावर विथ वुमेन एम्पावरमेंट. मास मोबिलाइजिंग मूवमेंट इन द वेरियस फॉर्म्स, वेरियस facilities to be provided, like what we did in tragedy of the Kedarnath this year. केदारनाथ में हम लोगों ने 1.5 लाख लोगों को भोजन कराया. स्वामी रामकृष्ण मिशन ने भी हमारा साथ दिया, पर हम 1.5 लाख लोगों तक भोजन के पैकेट पहुंचाए, पर वर्चुअली विद द हेल्प ऑफ ITBP एंड हेड्स ऑफ टू our force, that they helped us like anything. They took our packets. They said, we are waiting from government some help, but they are not bringing anything. Give us your packets. And they took our packets. Government packet put their label on the outer board, outer डब्बा होता है, उसके ऊपर उन्होंने अपना बोर्ड लगा दिया. पर जो पैकेट गया, पैकेट पे तो लिखा था वेद गायत्री परिवार के द्वारा आपके लिए सामग्री. तो पैकेट उस आदमी के घर में पहुंचा, डब्बा नहीं पहुंचा. डब्बा उन्हीं के पास पहुंचा, सरकार के पास. तो you can say guys, sarkar is dabba. ideal villages, how can you create ideal villages? Various villages clean करें, उसको clean करके अंदर villages में हम लोग produce करें एक ऐसी हारमोनी
कि जाति का भेद न रहे, संप्रदाय का भेद न रहे और सब मिलकर के काम कर सकें। हम लोगों ने मॉरल वैल्यूज़ को प्रमोट करने के लिए बहुत सारी किताबें, हमारे गुरुदेव ने 3,000 किताबें तो गुरुदेव ने लिख दी, बाकी 300-400 किताबें हम लोगों ने तैयार की हैं। ढेर सारी किताबों को घर घर जन जन तक पहुंचाया, अलग अलग लैंग्वेजेस में। मोर देन 15 लैंग्वेजेस वी हैव प्रोड्यूस द बुक्स, वी आर रीचिंग टू मासेस। दीज आर द बुक्स। भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा के माध्यम से इस साल 87 लाख पीपुल विल बी पुट टू एडवांटेज। 87 लाख पीपुल विल बी एक्सपोज टू इंडियन कल्चर। भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा हर एक, मैंने इवन बंगाल में भी हम लोग कराते हैं, बंगाली लैंग्वेजेस में। इससे भारतीय संस्कृति के बारे में जानकारी मिलती है। रिवाइवल ऑफ ट्रेडिशन, द वर्ल्ड इज गेटिंग रेडी फॉर ए बिग चेंज। द नीड ऑफ द आवर इज लोक सेवियों का निर्माण। लोक सेवियों का निर्माण, वी हैव टू प्रिपेयर द पर्सन हु कैन डिवोट टाइम, डोनेट टाइम फॉर द बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी। एंड जस्ट लास्ट वन स्लाइड। वृक्षों के अभाव में एरंड का पेड़ वृक्ष कहलाता है। अखंड ज्योति के परिवार से गायत्री परिजनों ने छोटे छोटे व्यक्तित्वों को आदर्श की दिशा में लगाया। गुरुदेव ने कोई बहुत बड़े आदमी नहीं लिए, छोटे छोटे आदमी लिए, छोटों को बड़ा बनाया, छोटों को बड़ा बनाया, महान बनाया, महान बना के उनको एक्सीलेंट बना दिया। उत्कृष्टता का एक नमूना है गायत्री परिवार कि आज उत्कृष्ट व्यक्तियों की इतनी बड़ी भीड़ दिखाई पड़ती है आपको चारों तरफ, हजारों लाखों करोड़ों व्यक्ति उत्कृष्टता की दिशा में। फ्यूचर परफेक्ट एंड नॉट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट, सुनिश्चित, ये काल नहीं है। युग परिवर्तन, अवश्यंभावी भवितव्यता, एडवेंट ऑफ ए न्यू एरा, ए सर्टेनिटी नॉट यूटोपिया। एक निश्चय रूप से भविष्य आने वाला है, अच्छा जमाना अच्छा आने वाला है। स्वामी विवेकानंद कह गए थे 150 साल आ जान दो, 150 साल के बाद स्वामी विवेकानंद ने कहा रामकृष्ण परमहंस के जन्म के 175 वर्ष का बाद संधि काल होगा। इस संधि काल के अंदर बहुत सारी तकलीफें आएंगी, बहुत सारी परेशानियां आएंगी, उसके बाद देखते देखते परिवर्तन दिखाई पड़ेगा। दैट पीरियड हैज़ एंडेड ऑन 2011, आवर गुरुदेव जन्म शताब्दी सेंटेनरी। अब 2011 के बाद सब कुछ अच्छा ही अच्छा होने वाला है। उस अच्छे में हाथ लगा दो, केवल हाथ लगा दो भाई। दो संगठन भिन्न हैं, रामकृष्ण मिशन और गायत्री परिवार, पर लक्ष्य हमारा एक है। हम दोनों मिलकर के काम करेंगे और हम दोनों मिलकर के इस राष्ट्र को सुंदर बनाने की कोशिश करेंगे। मेरा लक्ष्य है जन जन तक सदविचार पहुंचा दूं। दोनों ने एक ही बात कही है, आचार्य श्री ने और स्वामी विवेकानंद ने। This is the symbol of our Gayatri Parivar. You can see the mashal, the power committed to reconstruct the era. And human excellence का मॉडल है अतिमानस, श्री अरविंदो, मानवतावाद, ह्यूमनिज्म, the spiritual humanism, स्वामी विवेकानंद, अध्यात्मवाद, स्पिरिचुअलिटी, साइंटिफिक स्पिरिचुअलिटी, स्वामी श्री राम शर्मा आचार्य। फिर से काल चक्र घूम कर आ रहा है, एक बार फिर से भारत में से वही शक्ति प्रवाह निसृत हो रहा है जो शीघ्र ही समस्त जगत को आप्लावित कर देगा। विश्वास रखो, प्रभु की आज्ञा है कि भारत की उन्नति अवश्य होगी। ये स्वामी विवेकानंद का वाक्य है मित्रों। अगर वो कह रहे हैं तो लास्ट स्लाइड फ्रॉम मी, वर्ल्ड इज गेटिंग रेडी फॉर ए बिग चेंज। विल यू पार्टिसिपेट इन दैट? विल यू पार्टिसिपेट? इफ यू पार्टिसिपेट, इफ यू वांट टू पार्टिसिपेट, रेज योर हैंड। थैंक यू वेरी मच। उत्कृष्टता, एक्सीलेंस क्या हो, युवाओं के लिए मार्गदर्शन मिला। हम सभी को निश्चित रूप से अपने अपने जीवन में थोड़ा सा समय निकाल कर, थोड़े से रिसोर्सेज निकाल करके अगर हम देश की चिंता में थोड़ा समय लगा दें तो निश्चित रूप से 150 वर्ष पूर्व आए उस युवा की बातें सार्थक होती हुई नजर आएंगी। ये देश फिर से जगत गुरु बनता हुआ नजर आएगा। एक छोटी सी झलक झांकी उसी युवा चेतना स्वामी विवेकानंद जी की एक स्किट के रूप में हम सभी को यहाँ से देखने को मिलेगी। ये 20 मिनट की झलक झांकी हमें दर्शन कराएगी एक चेतना के, किस तरह एक व्यक्ति नरेंद्र से स्वामी विवेकानंद बना और किस प्रकार से उसने अपने सपने को साकार करने के लिए अपना जीवन लगा दिया। समय का वह पहिया जो श्रद्धेय डॉक्टर साहब ने कहा फिर से कालचक्र घूम कर आ रहा है, उसी
बात को चरितार्थ करती हुई यह एक छोटी सी नाटिका वो समझना अत्यंत कठिन है, क्योंकि मैं सदा एक सा नहीं रहता। ना जाने कितने युगों से मैं विधिवश अपने स्वरूप को बदलता रहता हूं। मैं नियंता भी हूं और विनाशक भी। प्रारंभ भी मैं ही हूं और अंत भी। हे मानव, हर जगह, हर धुन, हर ताल कलरव में मेरी उपस्थिति को जान। जल, वायु, अग्नि, वृक्ष, नदी, पुष्प, सब जगह मुझे ही अनुभव कर, क्योंकि मैं स्वयं महाकाल हूं। हे मनुष्य, आज मैं अतीत के उन सौभाग्यशाली क्षणों का स्मरण कर रहा हूं, जो आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं। लगभग 150 वर्ष पूर्व घोर अंधकार से भरी इस दुनिया की निराशा के समूल नाश के लिए भारत की पूर्व दिशा से एक सूर्य उदित हुआ, स्वामी विवेकानंद के रूप में। परंतु उस समय अज्ञान रूपी दम इतने चरम पर था कि स्वयं सूर्य भी अज्ञानता की घनघोर घटाओं से विचलित हो रहा था। निराशा के बादल मानो सूर्य को ही निस्तेज करने का दुस्साहस कर रहे थे। तब ऐसी विषम परिस्थिति में एक दिन मेरा सौभाग्य उदित हुआ। संपूर्ण मानव जाति के हित में एक सुयोग बना जब इस घटना चक्र में सूर्य का मिलन हुआ एक महासूर्य से। ठाकुर प्रणाम। ये नरेंद्र है, बहुत अच्छा गाता है। नरेंद्र है, नरों में इंद्र, अच्छा तो गाएगा ही। नरेंद्र, आज तो नक्षत्रों को मिलाने का दिन है पगले। आज बस तू गाएगा और आज बस मैं सुनूंगा। गाना नरेंद्र, तू चुप क्यों है? गा।
नरेन, तू दक्षिणेश्वर आएगा ना? तू जरूर आना, ठीक तो? मैं तेरी राह देखूंगा। तू जरूर आना, तू जरूर आना, मैं तेरी राह देखूंगा। मिलन हुआ तो अवश्य, लेकिन अपने लक्ष्य को प्राप्त न कर सका। कदाचित शिष्य ने गुरु के प्रकाश को अनुभव ही नहीं किया। परमहंस एक उन्मुक्त नदी की भांति बह निकले और नरेंद्र मझधार के एक भंवर की भांति वहीं फंस कर रह गया। परंतु मैंने भी स्वयं को संकल्पित कर लिया था, जब तक नरेंद्र स्वयं को और अपने गुरु को पहचान नहीं लेता, मैं काल चक्र को दोहराता रहूंगा। माँ, नरेन तो बोला था आऊंगा, पर वह आज भी नहीं आया। माँ, उसे बुलाना। माँ, उसे देखे बिना मुझे चैन नहीं आता। ऐसा लगता है जैसे मेरे कलेजा ऐठ रहा। उसे बुलाना माँ, उसके बिना मेरे प्राण ही निकल जाएंगे। उसे बुलाना माँ, उसे बुलाना माँ, उसे बुलाना। माँ, माँ, नरेंद्र आ गया। माँ, नरेंद्र आ गया, नरेंद्र आ गया, तू आ गया, नरेंद्र तू आ गया। तेरी मैं कब से राह देख रहा था, तू सोच भी नहीं सकता। इन विषयी लोगों से बातें करते करते मेरी जीभ जल गई। प्रभु, मैं जानता हूं तुम वही नर रूपी नारायण हो। जीवों का उद्धार करने के लिए ही इस धरती पर आए हो प्रभु, मैं जानता हूं। नरेंद्र, यही ठहरना, मैं अभी आता हूं, मैं अभी आता हूं। नरेंद्र, यही ठहरना। कौन है ये व्यक्ति? क्या चाहता है? पागल है क्या? मैं विश्वनाथ दत्त का बेटा, एक सामान्य व्यक्ति, और ये उन्मादी न जाने मेरे बारे में क्या क्या सोचे जा रहा है। पागल है शायद। नरेंद्र, आ ले खा। जी, मैं खा लूंगा, मैं खुद खा लूंगा। मैं अपने हाथों से खिलाऊंगा। तू यहाँ आ मेरे पास बैठ। आ बैठ, खा, खा ना, खा, खा। मैं आपसे कुछ पूछने आया हूं। क्या पूछना है? पूछो नरेंद्र। क्या आपने ईश्वर को देखा है? हाँ हाँ, मैंने ईश्वर को देखा है, ठीक वैसे ही जैसे मैं तुझे देख रहा हूं, बल्कि इससे भी साफ। मानव मन की सगुन अनुभूति उसके दर्शन करा सकती है। तो फिर मुझे क्यों दिखाई नहीं देता? ईश्वर को देखना ही कौन चाहता है नरेंद्र? कोई रोता है भगवान के लिए, कोई चिंता करता है उसके लिए, कोई नहीं करता। सब लोग अपने घर वालों के लिए, स्त्री के लिए घड़ों आंसू बहाते हैं, अपने गरीबी के लिए रोते हैं, पैसों के लिए रोते हैं, पर कोई भगवान के लिए रोता है? कोई नहीं रोता नरेंद्र, कोई नहीं रोता। यदि सच्चे मन से, सरल भाव से रोकर उसे पुकारे, तो भगवान उससे मिलने स्वयं ही चले आते हैं। ये व्यक्ति अजीब तो है, पर है बड़ा विद्वान। इसकी बातों में सच्चाई नजर आती है। क्या हुआ नरेंद्र? तू आ, मेरे पास बैठ। आ, बैठ तू मेरे पास, बैठ। ये क्या किया आपने? ये क्या किया?
मेरे माँ बाप अभी जीवित हैं ठाकुर, मेरे भाई बहन अभी जीवित हैं। अच्छा, ये क्या किया आपने? ठीक है, तू खुद ही बाद में अनुभव कर लेना। बैठ, आ, तू खुद ही बाद में अनुभव कर लेना, ठीक है? ले और खा। बस मैं चलता हूँ अब। तू- मेरे घर वाले राह देख रहे तू होंगे। वापस आएगा हाँ ना? हाँ, मैं आऊंगा। तू मैं वापस जरूर आएगा आऊंगा। ना? हाँ, तू आऊंगा, जरूर आना। आऊंगा। परमहंस जानते थे नरेंद्र के वैज्ञानिक मानस पटल पर ईश्वरीय चेतना के बीज नहीं बोए जा सकते, क्योंकि ईश्वरीय चेतना विज्ञान की सीमा से परे है। विज्ञान तर्क की भाषा है और अध्यात्म अटूट विश्वास की। विज्ञान साक्ष्य ढूंढता है, अध्यात्म स्वयं ही ईश्वरीय चेतना का प्रमाण है। विज्ञान बुद्धि का प्रतिफल है और अध्यात्म तो आत्मा का प्रतिफल। कदाचित इसीलिए ठाकुर की ठोकर ने नरेंद्र को तार्किक बुद्धि के परे धकेल दिया। इस अद्भुत घटना के पश्चात प्रारंभ हुई परमेश्वर की एक अद्भुत लीला। परमपिता परमेश्वर ने अपने प्रिय पुत्र नरेंद्र के धैर्य की परीक्षा ली। उसके जीवन में मानो विपदाओं का सैलाब उमड़ पड़ा हो। पिता की अकस्मात मृत्यु हो गई। परिवार कर्ज में डूब गया। गरीबी के कारण परिवार अपनी सामान्य आवश्यकताएं भी अत्यंत कठिनाई से पूरी कर पा रहा था। ऐसे गहन अंधकार में नरेंद्र एक बार फिर महासूर्य की शरण में पहुंचे। ठाकुर, तुम्हारी बात तो ईश्वर सुनते हैं ना? तो मेरे परिवार के कष्ट कठिनाइयों को दूर करने के लिए मां जगदम्बा से प्रार्थना कीजिए ना। मैं क्यों मांगू? तू तो मेरी माँ को नहीं मानता ना, इसीलिए तेरे परिवार वालों को कष्ट हो रहा है। देख, आज मंगलवार है, माँ का दिन। तू पूरे दिल से जो मांगेगा ना, वो माँ जरूर देगी। जा, जाकर मांग ले। मैं तेरे लिए यही से माँ से प्रार्थना करूंगा। जा, जाकर मांग, जा। हे मां, मुझे ज्ञान दो, भक्ति दो, वैराग्य दो मां, जिससे तुम्हारा अबाध दर्शन कर सकूं। क्यों नरेन, मांग लिया? नहीं ठाकुर, जो मांगने गया था वो नहीं मांग पाया। फिर जा, जाके फिर से मांग। जा 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 जा, जल्दी जा। हे मां, मुझे ज्ञान दो, भक्ति दो, वैराग्य दो मां, बस वैराग्य दो। अभी तो मांग लिया ना? नहीं ठाकुर, जब भी मैं मां के सामने जाता हूं सब कुछ भूल जाता हूं। दूर साला, भूल जाता है। जा, जाके पैसा मांग, पैसा पैसा। जा 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 जा। हे मां, मुझे बस ज्ञान दो, भक्ति दो, वैराग्य दो मां, भक्ति दो, वैराग्य दो। आपने ही मेरे ऊपर कोई जादू कर रखा है। आप ही मुझे बार बार भुलवा देते हो। नरेन, तेरे भाग्य में संसार का सुख ही नहीं है रे। इसमें मैं क्या कर सकता हूं? किंतु यदि
तू मेरी माँ की सेवा करेगा तो तेरे घर वालों को कोई कष्ट ना होगा। मैं मां को नहीं जानता, मैं आपको जानता हूं। आज के पश्चात आप ही मेरे परिवार की जिम्मेदारी दिखेंगे, याद रखिएगा। याद रखिएगा। आज मैं समय नहीं हूं, क्योंकि मैं तो कभी ठहरता ही नहीं। परंतु आज मैं एक विवश और दुखी शिष्य की भांति हाथ जोड़े दक्षिणेश्वर की ओर मुख करके खड़ा हुआ हूं, क्योंकि आज महासूर्य की जीवन यात्रा का अंतिम दिन है। मैं दुखी हूं, क्योंकि मैं जानता हूं, हे मानव जाति, आज के पश्चात तो उस प्रकाश पुंज के प्रत्यक्ष सानिध्य से सदैव के लिए वंचित रह जाएगा। और मैं विवश भी हूं, क्योंकि मैं जानता हूं, जीवन है तो मृत्यु भी सुनिश्चित है, आरंभ है तो अंत भी है। यही ईश्वरीय सिद्धांत है। इसे तो स्वयं मैं भी नहीं बदल सकता। नरेन, मेरे जाने के बाद तुझे ही शिक्षा देनी होगी। नहीं ठाकुर, ये काम मुझसे नहीं होगा, ये मेरे बस का नहीं है ठाकुर। तो क्या तेरी हड्डियां भी करेंगी ये सब? मुझे जरा उठाना तो। मैं फकीर हो गया रे। मैंने अपना सब कुछ तुझे दे दिया। नरेन, तू सबसे बुद्धिमान है, तू सबकी देख रेख करना। अगर ये सचमुच में ईश्वरीय अवतार हैं, तो इन्हें इतना कष्ट क्यों, इतनी पीड़ा क्यों? तुझे अब भी शंका हो रही है नरेंद्र? अरे मूर्ख, जो कभी राम था, जो कभी कृष्ण था, वही इस देह में राम कृष्ण है, पर तेरे वेदांत की नहीं, भक्ति की दृष्टि से, भक्ति की दृष्टि से। जय मां। ये लो नरेन, सकुशल विश्व विजय करके लौटो। माँ सरस्वती सदा तुम्हारी जिह्वा पर विराजे। ये लो। क्या हुआ नरेन, क्या सोच रहे हो? माँ, मुझे मेरी माँ और भाई बहन की चिंता है। मेरा परिवार अत्यंत कष्ट कठिनाई के दौर से गुजर रहा है, और जब वे ही दुखी हैं तो उनको उनकी हालत पर मैं कैसे छोड़ दूं? वे मेरे बगैर मर जाएंगे माँ, मर जाएंगे। तो क्या हुआ? अगर वो कष्ट में है, तुझे केवल अपने परिवार की चिंता सताती है? ठाकुर ने तुझे अपनी शक्तियां अभी अभी समर्पण में दे दी। तुझे केवल एक परिवार की नहीं, ऐसे लाखों करोड़ों परिवारों के लिए अपने स्वार्थपूर्ण भावनाओं की आहुति देनी होगी। ये देश तेरे बगैर मर जाएगा नरेन। जैसी आपकी आज्ञा माँ। जानता है इन चरण पादुकाओं को तुझे सौंपने का अर्थ क्या है? अरे, तुझे ठाकुर के महान कार्यों को आगे बढ़ाना है। तुझे उनके पद चिन्हों पर चलकर उनका सपना पूरा करना है। इस देश को बचा लेना नरेन। जो आज्ञा माँ, जो आज्ञा।
सत्य तो यही है कि महासूर्य कभी अस्त नहीं होता। उसका शाश्वत ज्ञान प्रत्येक युग में संपूर्ण मानव जाति की हर समस्या का उचित समाधान करता रहता है और करता भी रहेगा। महाप्रयाण के पश्चात ठाकुर की सभी अलौकिक शक्तियां नरेंद्र की चेतना में समा गईं और इसके साथ ही प्रारंभ हुई भारतीय संस्कृति की विश्व विजय यात्रा। अपनी मातृभूमि की दुर्दशा का आकलन करने के लिए नरेंद्र ने सर्वप्रथम भारत भ्रमण का निर्णय लिया। उस समय भारत में धर्म और दर्शन के नाम पर चहुं ओर पाखंड ही पाखंड बिखरा हुआ था। आध्यात्मिक साधनाओं के स्थान पर धार्मिक कर्मकांडों को अधिक महत्व दिया जाता था। मानव मनों में मनुष्यता समाप्त हो गई थी। एक अज्ञात भय से व्याप्त मानवीय हृदय तुच्छ अंधविश्वासों में जकड़ कर रह गया था। भारतीय युवा अपनी ही संस्कृति को हेय दृष्टि से देखते थे और परिणाम स्वरूप भारत में पश्चिमी सभ्यता विकसित हो रही थी। आर्ष ग्रंथों की उपेक्षा कर भारतीय समाज पाश्चात्य संस्कृति को अपना रहा था। विदेशी सभ्यता की चकाचौंध उसे अंधकार में धकेल रही थी। तब भारतीय संस्कृति की गरिमा को पुनः स्थापित करने के लिए धर्म को पाखंड की बेड़ियों से मुक्त करने के लिए अध्यात्म को अंधविश्वास से विलग करने के लिए नरेंद्र ने सांसारिक विषयों से पूर्णतः संबंध विच्छेद कर युवा सन्यासी का वेश धारण किया और बन गए स्वामी विवेकानंद। वे भारत के हर छोटे बड़े गांव, कस्बे और शहर में जाते, एक सभा आयोजित करते और युवा भारत को अध्यात्म का व्यवहारिक स्वरूप समझाते। इसी क्रम में अलख जगाते जगाते एक बार वे बंबई पहुंचे। बंबई के एक सुप्रसिद्ध सभागार में उपस्थित विद्वज्जनों के बीच उन्होंने उद्बोधन आरंभ किया। तभी भाइयों और बहनों, मैं एक ऐसा धर्म चाहता हूं जो हम में आत्मविश्वास और राष्ट्रीय स्वाभिमान का बोध जगा दे और हम में चारों ओर फैले समस्त कष्ट कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति भर दे। मातृभूमि के लिए मन में केवल प्रेम उमड़ आए, इससे काम नहीं चलेगा। जरूरी है अपने भारतवासियों को देखने के बाद आपके मन में हलचल कितनी उत्पन्न होती है। दीन, दुखी, गरीब भारतवासियों को देखकर उनके हालात को बदलने के लिए मेरे मन में आग सी लगी रहती है। मैंने कई विद्वानों को यह कहते हुए सुना है कि गरीब अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं। भाइयों बहनों, यह नकारात्मक सोच हमें संवेदनहीन बनाती है। अरे गरीब जो भोग रहे हैं वो उनके कर्मों का फल है, तो उनके दुखों को दूर करना हमारा कर्म होना चाहिए। यदि ईश्वर को चाहते हो तो मनुष्य की सेवा करो, यही सिखाती है हमारी भारतीय संस्कृति। संवेदना का विकास करती है हमारी पुरातन वैदिक संस्कृति। लेकिन बड़ी विडंबना है, मैं देख रहा हूं युवा भारत में तेजी से पाश्चात्य संस्कृति विकसित होती जा रही है। उसने हमारे युवाओं के हृदय को संवेदनहीन एवं
खोखला बना दिया है। Excuse me, Swamiji. This country is full of garbages. What is wrong if I follow the Europeans? They are cultured, educated, nice. They have the good of etiquettes. I feel ashamed being born here in this dirty country. Brother, there is nothing wrong accepting good things from other culture. You do serve your auntie, but not at the cost of your mother. मेरा देश मात्र जमीन का टुकड़ा नहीं है, ये माँ है, भारत माँ। My brother, gift of India to the world is gift of spirituality, gift of simplicity, gift of religion and philosophy. हम भारतीयों की यही समस्या है। अरे अपने धर्म शास्त्रों को पढ़ो पहले, उनको समझो और उचित लगे तो उनकी आलोचना भी करो, पर तुम्हारे जैसे अंधे को यह अधिकार नहीं कि वह औरों को बदसूरत कहता फिरे। मेरे भावी सुधारकों, मेरे देशभक्तों, हृदय से अनुभव करो अपनी भारत मां की पीड़ा को। क्या तुम हृदय से अनुभव करते हो कि भारत को अज्ञान के काले बादल ने ढक लिया है? क्या तुम हृदय से अनुभव करते हो कि लाखों करोड़ों लोग रोज गरीबी के कारण भूखे मरते जा रहे हैं? क्या तुम हृदय से अनुभव करते हो कि देव और ऋषियों की संतानें पशु तुल्य हो गई हैं? मैं ये नहीं कहता कि आज का युवा अपने हाथों में माला पकड़ ले। मैं ये भी नहीं कहता कि वह एकांत में बैठकर शांति की खोज करने लगे। मैं तो उसे खुली आंखों से भगवान दिखाना चाहता हूं। भाइयों और बहनों, राष्ट्र ही हमारा देवता है। ये दीन दुखी ही व्यक्ति ही हमारा भगवान है। सेवा करें हम अपनी मातृभूमि की, वंदना करें हम अपनी जन्मभूमि की, भारत मां की। वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सस्य श्यामलाम मातरम वंदे मातरम शुभ्र ज्योत्स्नां पुलकितयामिनी पुल्लकुसुमित द्रुमदल शोभिनी सुहासिनी सुमधुर भाषिणी सुखदां वरदां मातरं वन्दे मातरम्। एक मिनट टीम से थोड़ा सा मैं मुखातिब करा दूं। उधर से पूर्णेंद्र, संदीप सिंह जोधपुर से, और त्रिलोक जिसने लिखा है और डायरेक्टर है इसके स्वामी रामकृष्ण की पोजीशन में, विकास, स्वामी विवेकानंद। आप चारों ही देव संस्कृति विश्वविद्यालय के छात्र हैं, जो नालंदा और तक्षशिला की तर्ज पे परम श्रद्धेय डॉक्टर साहब का बुना हुआ विश्वविद्यालय है। इधर अपूर्वा माँ शारदा के रूप में मुंबई से ही, विवेक मुंबई से ही, आदित्य देशमुख बॉम्बे से, नंदिश इंजीनियर है मुंबई से ही, पुनीत मुंबई से ही, और फिर एक बार देव संस्कृति विश्वविद्यालय की अमिट छाप क्षितिज के रूप में। करतल ध्वनि इतनी जोरदार हो कि शायद स्वामी विवेकानंद को चरितार्थ करने के लिए यह पीढ़ी ऐसे ही लगी रहे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और आगे बढ़े, इस श्रृंखला को आगे बढ़ाएं। हमारे बीच में, जैसा हमने प्रारंभ में कहा था, वैचारिक वैतरणी है, और उस वैचारिक वैतरणी को आगे लेकर के जाने वाले कई लोग हैं जिनने स्वामी जी के विचारों को अपने जीवन में जिया। समाज अगर कहीं पर छिन्न भिन्न दिखाई दे